Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Elizabeth. Good afternoon. Okay, so let's start our peak state programming. Do you want to move a little bit? कि थोड़ा सा पीक स्टेट के साथ साथ थोड़ा सा मूव भी करें. तो जैसे मैं अभी ये टोनी रॉबिन्स के लाइव सेशंस अटेंड कर रही थी, तो उसमें रोज वो लोग कुछ ना कुछ लाइक डांस, यानी एवरी 10-15 मिनट्स ऐसा म्यूजिक लगाते एकदम धमाकेदार, एंड देन एवरीवन हैज टू डांस, क्योंकि डांस करने से योर बॉडी वेकअप. तो इसलिए वो करते थे. तो मैंने सोचा कि हम भी कुछ नया करते हैं, Do you want to try something like that? Yeah, okay, as you think. Anything. At least we can, if we not proper dance, but we can at least move, do Zumba exercise like that. No, like just 2 minutes, not Zumba or anything, but just for 2 minutes. Yeah, means actions. Yeah, actions. Right. So let me see. Hold on. Just धमाकेदार म्यूजिक लगा के थोड़ा ऐसे ही. So like this music. Man. Oh, you're so great. So, okay, let's dive into the power within. About all of your. Okay. So let's start. ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा कूदना है हमें, और कुछ नहीं करना है. I will just put on the music. खाली 2 मिनट के लिए, ज्यादा भी नहीं. Sometimes you Hold are on. more marshmallows while it opens. Workout music source. No, this is workout music. Okay. थोड़ा सा ऐसे. सुनाई दे रहा है? Turn on your music. थोड़ा सा बॉडी को बस मूव करना है, फिजियोलॉजिकली चेंज योर बॉडी. I'll bring some good music tomorrow. Okay, let's do our peak state programming. So मैंने फर्स्ट टाइम लाइव टोनी के साथ पीक स्टेट प्रोग्रामिंग किया. जो हम ये यहाँ पे करते हैं ना, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से दिखाया कि एक्चुअल में पीक स्टेट प्रोग्रामिंग करना कैसे होता है. तो दैट इज एन एब्डोमिनल थिंग. सो आपको कैसे करना है एग्जैक्टली, जो पीछे का पैर है वो थोड़ा सा मुड़ के होना चाहिए, मतलब बेंड होना चाहिए. ओके, the leg which is behind, तो वो थोड़ा सा ऊपर होके मुड़ा, मतलब बेंड होना चाहिए. दोनों पैर एक्चुअली बेंड होने चाहिए, and your abdominal should tuck in, and then you do this like running, but you are not moving your legs. Okay, so let's start our music. State programming. How to change your mental same position. Just move your hands faster and faster. Okay. So this leg should be bent. Okay. 2. In fact, both of legs. Go. Come on, run. Yay. Run faster. Yes, fast. Yes. Come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes. Come on.
Yes, you can do it. Come on, fast, fast, faster. Yes, yes. Keep running, keep running, keep running, fast, fast. Yes, come on, fast, fast, fast. Yes, yes. Still Come faster. on, Yes, fast. yes, faster, faster. Come on, go fast, go fast. Yes, fast. And now stop, stop, You stop. should Thank feel you. like Yes, very movement nice, in very your nice, stomach. very nice. And you say to yourself, Yes, I'm the winner. I'm We the all winner. are the winners. I'm the winner. I'm the winner. Yes, thank you. So now, 2, 1, go. Come on. Go on the second leg. Come on, run faster, faster, faster. Yes, faster, faster, still faster. Yes. Come on. Yes. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster, faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Yes. Run We are faster, the still faster. winners. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just Yes, stop. I'm the winner. Thank you. And let's do And some now, stretching say exercise. to yourself, yes, I'm the winner. I'm the winner. Yes, I'm the winner. I'm the winner. I'm the Like winner. this. I'm the winner. Do some stretching. And now we say to ourselves, I can. Okay, repeat. I can. I can, I will, I must. I can, I will, I must. Thank you so much. And then this. हम योगा में जैसे करते हैं, तो ये सारी स्पाइन को थोड़ा एक्टिवेट करने की एक्सरसाइजेज है. Then also like rotating around. यानी हाथ ऐसे रखने, फिर अभी ऐसे करके भी रोटेट करने हैं हैंड्स. तो ये आपका पूरा स्पाइन थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है उसकी वजह से. यस. एंड नाउ दोनों हाथ ऐसे करके ऊपर थोड़ा स्ट्रेच करना है. उसको थोड़ा होल्ड करके रखो 30 सेकेंड्स के लिए. लेट्स होल्ड इट. ओके, नाउ सिट इन द चेयर. चेयर पे भी आप कौन सी ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हो जिसकी वजह से आप एक्टिव, मतलब थोड़े एक्टिव फिजियोलॉजिकली एंड माइंड से एक्टिव हो जाते हो. तो उन्होंने ये भी बताई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ. तो जैसे एकदम हंच करके ऐसे बैठो और फिर पेल्विक से आपको, पेल्विक एरिया से दिख रहा है ना, पेल्विक एरिया से आपको ऐसे हंच करके फिर पेल्विक एरिया से आपको पूरा स्ट्रेट करना है. वापस ऐसे हंच एंड देन पेल्विक एरिया जो हमारा ये नीचे का एरिया होता है ना, एब्डोमिनल के नीचे का, वहां से आपको धीरे धीरे ऐसे स्ट्रेट करना है अपने आप को, अपनी बॉडी को. ये ऐसे ही 2-3 बार करना है. ओके, सो या सो लाइक चेयर पे बैठ के भी आप अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रख सकते हो, या अपने थोड़े मसल्स को ऊपर नीचे कर सकते हो. तो हाउ आर यू फीलिंग? ग्रेट. ऑसम मैम, अच्छा लग रहा है. हाँ, थोड़ा सा स्पाइन का मूवमेंट होता है तो इट्स गुड फॉर द स्पाइन एंड गुड फॉर आवर माइंड. All right, so let's start our gratitude. So let's start. थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए. पहले हमने अभी जो भी मूवमेंट की उससे आपकी हार्ट बीट बढ़ गई होगी, तो उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं. डीप ब्रीदिंग के साथ. Thank you, God, for this beautiful, amazing life, which is full of love, peace, harmony,
joy, bliss, success, wealth, prosperity, and everything that my heart desires. My beautiful heart desires. Yes. Thank you, thank you, thank you, God. एक ये नया हर दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ये पूरा जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इतनी बेहतरीन लाइफ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. I thank life and life's experiences to make me and grow in whatever I am today. मुझे इतना पता है, इतना सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. That in order to live a perfect life, in order to, maybe we can say like dream life, we have to do two things in life. One is to give love and the second is to grow. अगर ये दो चीज हम करते रहते हैं तो हमें पक्का पता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते ही जाएंगे. तो ये बात सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, thank you, thank you. Thank you for my bed and pillow, blanket. इतना cozy bed, इतना cozy blanket कि जितनी भी ठंड बाहर होती है, घर में भी कभी कभी थोड़ी ठंड बढ़ जाती है because of outside temperatures. तो एक भी ब्लैंकेट के साथ पता ही नहीं चलता, इतनी अच्छे से नींद आती है पूरी रात. उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल नाइट स्लीप. इतनी अच्छी नींद देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी फ्रेशनेस के साथ मैं उठती हूँ. भले 4 घंटे या 5 घंटे की भी नींद में लेती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो नींद इतनी गहरी होती है कि मुझे बिल्कुल फ्रेश कर देती है. मेरे बॉडी के अंदर सारी चीजों को रिजुवनेट कर देती है. एंड फॉर वन मोर डे मुझे अपने लिए प्रिपेयर कर देती है. तो यस, ये नींद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ये धरती माता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिनके ऊपर हमने जन्म लिया है और इतनी अच्छी लाइफ हमें मिल पाई है उन्हीं की वजह से. मेरे बाथरूम का बहुत बहुत शुक्रिया, बाथरूम की एक एक चीजों के लिए. कमोड के लिए शुक्रिया, वैनिटी के लिए शुक्रिया. बाथरूम के अंदर जो मिरर है जिसके सामने रोज मैं सुबह उठ के अपने अफर्मेशंस बोलती हूँ या ऐसे ही अपने आप को प्यार करती हूँ, वो मिरर का बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे बाथ टब का, सारी चीजों का जो बाथरूम के अंदर मैं यूज करती हूँ रोज, वो सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जिस ब्रश से मैं अपने दांतों को ब्रश करती हूँ, क्लीन करती हूँ, उसके लिए शुक्रिया. टूथपेस्ट के लिए शुक्रिया. पानी के जो जितने भी हमारे घर में टैप्स हैं, जहाँ से दोनों बाथरूम के अंदर 2 लगे हुए हैं वैनिटी के ऊपर, दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इतना अच्छा स्टोरेज दिया है उसके लिए बाथरूम के अंदर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. कैबिनेट्स के लिए, वो सारी चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सोप, शैम्पूज, बॉडी वॉश, तो सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मुझे डिफाइन करती है. मैं उनको रोज यूज करती हूँ और कभी शुक्रिया बोलना भूल जाती हूँ. बट आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ देम टू बी इन माई लाइफ. ये सारी मटेरियल चीजें जो मेरी लाइफ में है, जो मेरी लाइफ को बहुत आसान करती है. मेरे वार्डरोब के लिए शुक्रिया कि मेरे पास इतने कपड़े जरूर हैं जिसमें से मैं कुछ भी अच्छा, जो भी मूड है उस तरह से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ. तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ये कपड़ों के फैब्रिक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जहाँ कहीं पे भी ये कपड़े बने हैं,
जो कॉटन उसमें लगा, वो कॉटन के ट्रीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी कंपनियों ने, जो भी अपने, उनकी जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से ये कपड़े बने, वो इतने कंफर्टेबल है कि मुझे पहन के बहुत मजा आता है, बहुत ही कंफर्टेबल लगता है कपड़ों के अंदर। तो ये सारे कपड़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे रोज पहनने को मिलते हैं। पता नहीं कहीं कई कई कंट्रियों में से ये कपड़े सारे आते हैं, जरूरी नहीं कि यही कंट्री में बनते हैं। तो वो सारी कंट्रीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वो सारे लोगों के लिए शुक्रिया जो कहीं ना कहीं पे ये कपड़े बनाने के अंदर इन्वॉल्व है। जो लेबर जो लगता होगा, जो मशीनें लगती होगी, वो सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने अच्छे बेहतरीन कपड़े मैं पहन पाती हूँ। कहीं ना कहीं पे बहुत लोगों का हाथ है, तो सारे लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बेड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, टॉवेल्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा जो भी मेकअप का सामान है उसके लिए शुक्रिया, जो भी मेरी काजल है, लिपस्टिक है, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी चीजें मेरी लाइफ को बहुत बेहतरीन बनाती है कहीं ना कहीं पे। मेरे बेडरूम के अंदर जो फर्नीचर है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उसमें जो मिरर लगा है, ड्रॉवर्स है, उस सभी के लिए शुक्रिया कि मैं अपने कपड़ों को आराम से अच्छे से ड्रॉवर्स के अंदर रख सकती हूँ और बहुत ही अच्छे से मैं उसमें से निकाल के पहन सकती हूँ जब भी है। और कितनी सारी चीजों को ये ड्रॉवर्स ने संभाल लिया है, तो मेरे घर को थोड़ा ऑर्गेनाइज रखते हैं ये सारे ड्रॉवर्स। मेरे क्लोजेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे बेडरूम के अंदर है, जिसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के इतने सारे कपड़े हैंगर्स में लटके हुए हैं। और कई सारी चीजें हम अपने क्लोजेट में रखते हैं। उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेल्फ्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बेडरूम की सारी चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे एकदम कोजी फील करवाती है जब भी मैं बेडरूम में जाती हूँ। कोजी एंड रिलैक्स फील हो जाता है जब भी मैं सोने के लिए भी जब जाती हूँ। वही मेरी बुक सब पड़ी है वहीं पे। वो शेल्फ के लिए शुक्रिया जहाँ पे मैं ये सारी बुक्स रख पाती हूँ। और इतनी प्रॉक्सिमिटी में सब कुछ रखा हुआ है कि मैं सोने से पहले जो भी मेरा है वो बहुत इजीली आसानी से कर पाती हूँ। मेरे मैजिक रॉक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो हाथ में पकड़ने के साथ ऐसी बच्चों जैसी नींद आ जाती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी चीजों के लिए शुक्रिया जो मेरे मॉर्निंग, जो मेरा दिन, मेरी लाइफ बहुत ही बेहतर बनाते हैं और बहुत ही आसान बना देते हैं। सारी चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सारी बुक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऑथर्स के लिए, तो मैं उसको खरीद पाई वो पैसों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी चीजें जो कंफर्ट के लिए मैं ले पाई, वो सारी चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उस पैसों के लिए जो बहुत बहुत शुक्रिया जो कहीं ना कहीं से मुझे मिले, जिसकी वजह से मैं इसको खरीद पाई। मेरे दोनों बच्चों के बेडरूम्स के लिए, उनके क्लोजेट्स के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनके कपड़े, उनकी सारी चीजें, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी चीजें हमारी लाइफ बहुत आसान बनाती है। उनके बेड्स के लिए शुक्रिया जिन पे वो सोते हैं, उनके ब्लैंकेट्स के लिए शुक्रिया, पिलो, बेड्स, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हवा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो हवा के अंदर इतना सारा ऑक्सीजन है,
जब हम ब्रीथ करते हैं, जैसे अभी विंटर के अंदर -डिग्रीज में जब ब्रीथ करते हैं तो इतनी ठंडी ठंडी हवा अंदर जाती है। ठंडी क्रिस्प एयर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे ऑक्सीजन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्नोफॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर माई कार, जो कार लेके मैं रोज अपने काम पे जाती हूँ, मुझे हमेशा सही सलामत टाइम से पहुंचाती है ये कार, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे अभी कभी आईसी स्लिकी रोड होते हैं तो भी मेरी कार इतने अच्छे से काम करती है और मुझे मेरी डेस्टिनी तक बहुत सही सलामत पहुंचाती है रोज, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो ब्लेस्ड टू हैव सच अ कार। कार के अंदर जो इंटीरियर, जो सीट्स बनी हुई है, वो सबके लिए शुक्रिया। डैशबोर्ड जो है उस पे, उसके लिए शुक्रिया। उसके स्टीयरिंग व्हील के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिससे मैं मैन्यूवर करती हूँ मुझे कहाँ जाना है। मेरी कार के सिस्टम के लिए शुक्रिया, जो कीलेस सिस्टम है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कभी भी कीज के बारे में मुझे कोई चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मेरी कार ही मुझे बता देती है कि अगर कार के अंदर मैंने कीज भी छोड़ी तो वो बीप करने लगती है। तो वो सिस्टम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी चीजों के लिए शुक्रिया जो हमारी आसान बनाती है हमारी लाइफ को। मेरे घर के लॉक जो मेरे हस्बैंड ने लगाए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना आसान हो जाता है, खाली पिन नंबर डालो और हम घर में आ जाते हैं। हमें कोई कुछ कीज या कुछ भी कैरी नहीं करना पड़ता। ये सारे सिस्टम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव सच एन अमेजिंग लाइफ, जहाँ पे सब आसान है, चीजें सब अपने फिंगर टिप्स के ऊपर है। नाउ वी हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस where we want to go. That's it. How we will reach there, we don't have to know. Just take one small step. That's it. एक ही कदम लेना है और फिर सारा रास्ता अपने आप खुल जाता है। So thank you so much. ये पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि पानी सब जगह पे बहुत ही आसानी से हमें मिल रहा है। एक एक जगह पे, कहीं पे भी चले जाते हैं पानी एकदम इजीली अवेलेबल होता है। और ये पानी जो हमारी लाइफ को बेहतरीन बनाता है। इनफैक्ट पानी के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हीट है, फायर है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम। सो ईएफटी आज इसके ऊपर करेंगे कि जैसे हमारा माइंड भटकता है ना, ये चीजें लाइक माइंड हमें भटकाता रहता है कि ये चीजों में से ही, कि ये चीजें जब हम करते हैं, हाँ, जैसे ये सब प्रैक्टिसेस हम करते हैं ना, उसमें से हमारे माइंड भटकाता है। हमें बार बार कुछ ना कुछ ऐसी जगहों पे वो, ये माइंड के 3 काम होते हैं: डिलीट करना, मेजर करना, एनालाइज करना। ओके, तो ये चीजों में हमें ऐसे भटकाता है कि हम स्पिरिचुअलिटी में जब भी आगे बढ़ते हैं, यस, पीस ऑफ माइंड, या दैट इज ऑल्सो अ थिंग, बट यानी भटकाता रहता है ना, तो हम प्रैक्टिस से भी कभी कभी दूर चले जाते हैं। हम प्रैक्टिस करना नहीं चाहते क्योंकि हमें माइंड ने कहीं और डायरेक्शन में हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। तो उसके लिए आज हम ईएफटी करेंगे। ओके, कि माइंड को हमेशा फोकस्ड कैसे रखे, प्रैक्टिस के अंदर कैसे हमेशा बने रहे, उसके लिए आज हम ईएफटी करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। Even though sometimes I feel like not practicing, even though sometimes my mind says, let's just skip it for today.
but I still deeply and completely love, accept, and honor myself. Even though I feel low sometimes and feel like not doing anything for my spiritual practices, for my gratitude practice, and I get distracted because of one or the other problem that is going on. But I still deeply and completely love, accept, and honor myself. Okay, so let's take some deep breaths. अपनी इंटेंसिटी को मेजर करो, यानी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इंटेंसिटी होगी यहाँ पे, बट इंटेंसिटी मतलब आपको खाली इतना ही मेजर करना है कि आपके माइंड के अंदर अभी कौन से थॉट्स आ रहे हैं इसके रिलेटेड, कि जब कभी आप मिस करते हो चीजें, प्रैक्टिसेस मिस करते हो या कोई भी चीजें मिस करते हो, तो वो टाइम का मतलब सोच के आपको कैसा लग रहा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Even though sometimes I feel like not doing anything, I feel like कुछ नहीं होता, मुझे तो घर के काम या मेरे दूसरे जो काम है उसमें ध्यान देना चाहिए. वो ऐसा करके मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ. और मुझे अपना फोकस वापस इसमें लाने के लिए कभी कभी टाइम लगता है. एंड वो कामों जो सारे काम होते हैं मेरे, जो पेंडिंग होते हैं, वो कामों के लिए मैं इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि चलो प्रैक्टिस छोड़ दो, कोई बात नहीं. But I still deeply and completely love, accept, and honor myself. मैं जैसी भी हूं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ. मैं पूरी तरह से अपने आप को प्यार करती हूँ. And I honor who I am. Even though इतनी सारी चीजें मेरे माइंड पे होती है, तो कभी कभी मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है. मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती कि मुझे इस मोमेंट में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए. और कहीं ना कहीं पे मेरा पीस भी डिस्टर्ब हो जाता है ये सारी चीजों की वजह से. और मेरा फोकस भटक जाता है, जो मेरी प्रायोरिटीज होती है. ये जो मेरी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है, ये सारी प्रैक्टिसेस से मेरा ध्यान भटक जाता है. और ऐसे इमोशंस मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं पे मुझे ये प्रैक्टिसेस करने से रोकते हैं. वो सारे इमोशंस को मैं आज रिलीज करती हूँ. वो सारे इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, अपनी खुद की लिमिटेशंस को मैं रिलीज करती हूँ.
जो भी लिमिटेशंस मैंने खुद ने बांध ली अपने ऊपर कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे काम है जो मुझे करने होते हैं पूरे दिन में, वो माइंड का पूरा अडंबर जो है, पूरा फसाड है, वो मैंने अपने ऊपर जैसे ओढ़ लिया है। और उसमें से बाहर आने का कभी कभी मुझे रास्ता नहीं दिखता। But I still deeply and completely love, accept and honor myself. ये जो persistence के बारे में मेरे अंदर कोई कोई नेगेटिव थिंकिंग या इमोशन से बचपन से ही कि मैं persistently कुछ नहीं कर सकती, मुझे खुद को डाउट्स होते हैं अपने ऊपर, और चीजें स्टार्ट करके मैं बीच में छोड़ देती हूँ कभी कभी। बट वो सारे ऐसे इमोशंस को मैं जाने देती हूँ जो मुझे कहीं ना कहीं कमतर फील करवाते हैं या मुझे अपने ही बारे में गिल्ट या सेल्फ डाउट फील करवाते हैं। I truly believe in myself and I take the responsibility for my own life. And इस लाइफ को अच्छी बेहतर बनाने के लिए मेरे सपनों की तरफ मुझे बढ़ने के लिए जो भी प्रैक्टिस करनी चाहिए मुझे, उस सारी प्रैक्टिसेस में बहुत दिल से परसिस्टेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ रोज करती हूँ। And I get one more step closer to my dreams when I do these practices every single day. और मैं इसका इम्पोर्टेंस समझती हूँ। आई एम वर्किंग ऑन माई माइंड, आई एम वर्किंग ऑन माई माइंड पैटर्न्स, सो आई हैव टू बी पेशेंट विथ माई सेल्फ। ये भी मैं समझती हूँ कि मुझे अपने आप के साथ धीरज रखनी है। ओवरनाइट में ये सारी पैटर्न्स को चेंज नहीं कर सकती, और जो भी टाइम लगेगा लगेगा, बट आई एम कमिटिंग टुडे टू डू इट फॉर माई होल लाइफ, because that's what I am. That's who I am. I'm a pure consciousness. Aham Brahmasmi. I'm a pure consciousness. और जो भी ऐसी चीजें हैं जो मुझे रोकती है अपने ट्रू सेल्फ की ओर बढ़ने से, वो सारी चीजों को, वो सारे इमोशंस को, लिमिटेशंस को, बिलीफ सिस्टम को मैं अपने अंदर से पूरी तरह निकालती हूँ। I release all the guilt. I release all self-doubt. I release self-limitations which I put on myself. And I'm at peace with my past. I feel secure and safe about my future. And I deeply and completely love, accept, and honor myself. I deeply and completely love, accept, and respect myself.
I respect who I am. And I value myself. And so it is, and so be it. तो ये किसी का एक्चुअली आया था कि जैसे उन्होंने मुझे, अभी मेरी फोन पे ही बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि लाइक मैं चाहती तो बहुत हूँ करना, बट मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती, दिस दैट। सो उसने बोला कि आप इसके ऊपर भी ईएफटी करवाओ, कि प्रैक्टिस अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो उसको मैं कैसे अपने अंदर से, यानी ये सारे जो ब्लॉक्स है मेरे माइंड के अंदर, उसको कैसे निकालूं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, हम इसके ऊपर भी ईएफटी कर सकते हैं। तो आप किसी भी चीज के लिए ईएफटी करके अपने अंदर कोई ब्लॉक्स है तो आप निकाल सकते हो, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। आपको और ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, 2-3 सेंटेंस बोल के आप टैपिंग करते रहो, एंड रिलीज 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 ऐसा बोलते रहो, दैट्स इट। कुछ ज्यादा नहीं करना है। बट आई थॉट लेट मी जस्ट डू इट, सो मैंने आज ले लिया वो टॉपिक। ओके, सो नाउ लेट्स डू अवर होपोनोपोनो। कि हम अपने ही आप को कभी कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी हम अपने आप को गिल्टी में लेके जाते हैं या कोसने लगते हैं, अपने आप के ऊपर हम ब्लेम करने लगते हैं कभी कभी कि मैं क्यों प्रैक्टिस नहीं कर पाती, या मैं प्रैक्टिस में से बिल्कुल निकल गई, मैं छूट गई मेरी प्रैक्टिस। तो इस तरह से भी हम अपने आप को बहुत बोलते हैं, राइट। तो वो सबके भी लिए आज हम होपोनोपोनो करेंगे, ठीक है। तो लेट्स डू इट। Invite the divine energy. Place a hand on your heart. पूरा फोकस दिल की ओर लेके जाएंगे। और अभी जब जब कभी भी आपने कोई प्रैक्टिस कर रहे थे और आपकी बीच में कभी प्रैक्टिस छूट गई, या मे बी आपने कोई दिन स्किप कर दिए प्रैक्टिस से, तो वो सबके लिए, जब कभी आपने अपने आप को गिल्टी महसूस करवाई, या आपने अपने ही बारे में बोला कि यार मैं तो प्रैक्टिस करती नहीं हूँ, मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ, मतलब कंप्लेंट की हमने अपने खुद के बारे में कहीं ना कहीं पे, वो सबके लिए आज मैं अपने दिल से माफी मांगती हूँ। फिल योरसेल्फ विद द डिवाइन लाइट। जो सूरज की जो ये पॉजिटिव रोशनी है, यानी वो पॉजिटिविटी आपके अंदर पूरी भर गई है, एक एक सेल के अंदर। वो लाइट को अपने अंदर पूरी तरह से इमेजिन करें, वही लाइट को अपने दिल के अंदर जाने दे। और जैसे एक थोड़ा सा आपके अंदर जो लाइट जा रही है, वो थोड़ी सी है, बट वो लाइट अपने आप एक्सपांड हो रही है आपके दिल के साथ मिलके। तो अपने दिल को भी एक्सपांड होता हुआ महसूस करें कि आपका दिल एक्सपांड हो रहा है। इसके साथ साथ ये लाइट भी बहुत ज्यादा ब्राइट होते जा रही है। आपकी पूरा आपके आसपास रोशनी से भर गया है, आपकी ये जो दिल से जो लाइट निकली है, जब जहां कहीं पे भी हो वो पूरा पूरा रोशन हो चुका है, बिकॉज ऑफ द लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम योर हार्ट। इतनी ज्यादा लाइट कि आपको जैसे थोड़ी सी आंखें बंद करनी पड़ रही है, इतनी रोशनी अपने आसपास महसूस कीजिए। कितना सेफ डिवाइन एनवायरनमेंट है ये, पूरा प्यार से लव से भरा हुआ है। और ये एनवायरनमेंट में मेरी सारी नेगेटिविटी टिक ही नहीं सकती, वो हील हो रही है। सब कुछ जो मेरे अंदर नेगेटिव है वो निकल के लाइट के साथ मिल जाता है। जहां पे लाइट है वहां पे कोई अंधेरा नहीं टिक सकता, अपने आप डिस्पेल हो जाता है। तो मेरे अंदर भी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी गिल्ट की या अपने आप को कोसने की, क्रिटिसाइज करने की, कि प्रैक्टिस नहीं कर सकती, इसके लिए भी
जो भी नेगेटिविटी मैंने अपने अंदर स्टोर की होगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, वो सारी नेगेटिविटी ये लाइट के अंदर छूमंतर हो जाती है। इतनी रोशन ये लाइट है, डिवाइन लाइट। Now let's say these magical sentences and invoke more of the divine energy. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. फील कीजिए अपने अंदर वो डिवाइन लाइट को। फील कीजिए कि आपकी सारी नेगेटिविटी इसमें मेल्ट हो गई। एक 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 सेल आपका रोशन हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो नाउ लेट्स डू आवर मिरर वर्क प्रैक्टिस। तो जैसे मैं आपके साथ कुछ कुछ शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा ये भी आपको बताऊं कि लाइक जो मेन बात जो टोनी रॉबिन्स ने की थी कि आप अपनी स्टोरी आप अपने खुद बनाते हो। अभी हम कौन सी लाइफ जीते हैं जो स्टोरी हमने अपने आप को बार बार बोली है, ओके। और हमने ही अपनी कोई आइडेंटिटी क्रिएट की है अपने माइंड के अंदर, इसी वजह से जो भी होगी हमारी लाइफ है। बट अगर आइडेंटिटी या स्टोरी जब तक हम चेंज नहीं करते तब तक हम अपनी लाइफ को नहीं ब्रेक थ्रू कोई नहीं ला सकते अपनी लाइफ में, वो सेम लाइफ ही चलती है। तो आइडेंटिटी बदलने के लिए उसने भी यही बात की, इनकांटेशन, यानी उसने अपने लाइफ से एक पूरा एग्जांपल लिया था। आई वोंट बी सेइंग एवरीथिंग बिकॉज हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है यहाँ पे, बट उसने बोला कि लाइक वो इनकांटेशंस मतलब एफर्मेशन, बार बार ऑलमोस्ट 1000 टाइम वो एफर्मेशन वो अपने आप को बोलता था। कि जैसे एक बार उसको बहुत दूर से जैसे उसके पास उस टाइम पे कार नहीं थी, तो उसको दौड़ के 2.5 किलोमीटर घर पहुंचना होता था रोज। तो हाउ वुड ही डू इट? जस्ट सेइंग दिस एफर्मेशंस अगेन एंड अगेन दैट आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इतना ज्यादा वो अपने आप को पूरे मतलब जब तक वो दौड़ता था तब तक ये एफर्मेशंस बोलता था। और उसने यही बात बताई कि ये ओवरनाइट नहीं होता है ये सब कुछ, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मतलब जो भी टाइम लगता होगा वो डिपेंड्स ऑल्सो ऑन योर इंटेंसिटी, आप कितना करते हो। बट ऑल दीज प्रैक्टिसेस जो हम कर रहे हैं वही चीजें उन्होंने भी बताई कि कैसे हमें अपनी खुद की आइडेंटिटी को, हम जैसे धीरे 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 अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहे हैं। कि जहाँ पे हम पहले बोलते थे कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, तो अब हम क्या बोलते हैं? नो आई एम कैपेबल, ओके। जहां पे पहले हम बोलते थे कि आई एम नॉट गुड इनफ, अभी हम बोलते हैं नो आई एम होल एंड कंप्लीट। बट ये का इनकांटेशन एकदम से तो नहीं होता ना, उसको बार बार आपको रिपीट करना है अपने माइंड के अंदर पूरे दिन में भी। जैसे लुइस है ने उनकी एक बुक मैंने अभी रिसेंटली रीड की, तो उसके अंदर
पूरे दिन के लिए कुछ एफर्मेशन है। जैसे वो घर में निकलती तो घर को थैंक यू बोलती है, काम पे पहले से ही बोल देती है कि आई एम सो ग्रेटफुल टू रिच वर्क ऑन टाइम, और या जो भी मैं अपने काम पे हमेशा ऐसे लोगों के साथ में काम करती हूँ जो बहुत ही जॉयफुल है और बहुत ही सपोर्टिव लोग हैं। तो पहले से ही एफर्मेशंस पूरे दिन में एक एक चीज में आपको एफर्मेशंस बोलने हैं। भले हम ये मिरर प्रैक्टिस तो करते हैं, मिरर के अंदर तो हम एक बार बोलते ही है, बट दिन में पूरे दिन में बार बार ये एफर्मेशंस आपको रिपीट करने हैं। अगर कहीं पे आप बाहर गए हो अपने जॉब पे से, अपने बिजनेस में से, जैसे ही घर वापस आते हो तो एफर्मेशन क्या, आई एम हैविंग अ गुड टाइम, आई एम हैविंग अ वंडरफुल टाइम विथ माय फैमिली। ये एफर्मेशन कि आई एम हैविंग अ वंडरफुल टाइम विथ माय फैमिली, आई एम हैविंग अ वंडरफुल डिनर एट माय होम। तो पहले से ही एफर्मेशंस में सब कुछ डाल देना। तो देखो कितना कॉन्शियसली आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम एक ही घंटा प्रैक्टिस करें फिर पूरे दिन में तो ऐसे ही इतने सारे कामों के अंदर उलझ जाते हैं कि हम एफर्मेशन का तो ए भी भूल जाते हैं। यानी ये प्रैक्टिस से ही आता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से आ जाएगा। प्रैक्टिस से, जैसे हमने ग्रेटिट्यूड करना प्रैक्टिस कर 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 करके थोड़ा सीख लिया, उसी तरह से एफर्मेशंस भी प्रैक्टिस की चीज होती है कि जितना हो सके इतना एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना। Okay, so just wanted to give you some highlight about this. Today, is it okay if we extend a little bit our this session? कि आप सबको कोई कहीं पे जाना है या कुछ है काम, यानी 6:15, जैसे मेरा यहाँ पे 6:15 होगा उसकी जगह पे 6:30 तक हम रीड कर ले। Is it okay for everyone? Like 15 minutes? Okay. Yes, ma'am. Okay, okay. Thank you, Neha ji. Yeah, okay, Alifia. Okay, Farid, thank you. So let's do our affirmations. I love you. I really, really, really love you. I love the way you smile. I love the way you walk. I love the way you talk. And I love everything about you. I love your eyes. I love your hair. I love all those, even little bit of what you call झुरिया जो बोलते हैं, उसको भी मैं इतना ही प्यार करती हूँ। जो भी है, थोड़ा सा जो भी डार्क सर्कल्स है उसको भी मैं इतनी ही अच्छे से प्यार करती हूँ। I accept myself exactly the way I am. हाँ, वो थोड़ा फैट के फ्लैब्स है स्टमक के ऊपर, थाइस के ऊपर, सबको मैं पूरी दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। That's fine. That's me. That's who I am. So yes, I accept myself exactly the way I am. I accept and I love myself. I'm fully healthy, whole and complete. I'm healthy and energetic. I'm active in every moment of my life. And I know I change my physiology and I change my state of mind. Yes. I love you, Alifia, for doing all this. I love you. And I thank you for doing all the things that you're doing right now. I respect you, I trust you, I value you. Yes. And I approve of you. I love you and I approve of you. I love you and I approve of you. I love you and I approve of you. I choose happiness in this moment and I'm fully happy, healthy and complete in myself. I choose happiness. I choose love. I choose joy in my life. Yes, I'm a very joyful, very blissful person. I'm born to live an amazing life. I'm born to live beautiful. एकदम ग्रैंड ग्रेट लाइफ जीने के लिए मैं बनी हूँ। मुझे ऑलमाइटी ने
बहुत ही ग्रैंड लाइफ जीने के लिए यहाँ पे धरती पे भेजा है. And that's what I am doing. I am born to live an amazing life. Life supply all my needs in abundance instantly. जो भी मेरी जरूरियात होती है वो लाइफ हमेशा पूरा करती है. Wherever I turn, prosperity follows. हमेशा लाइफ मेरा बहुत समर्थन करती है. Life always has my back. Universe always has my back. And I am one with the power that created me. Yes, I am one with the power that created me. I am one with my source, where I come from. I am one with the source. And I accept who I am. Yes. Thank you. I'm connected to my higher self and I listen to my intuition every day. Okay, so let's take our magic check. And उसके लिए आज हाथ खोल के एकदम खुशी के साथ, शुक्राना के साथ आपको यूनिवर्स में बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड फॉर दिस अमाउंट, फॉर दिस ड्रीम टू बी फुलफिल्ड, व्हाटएवर आई नीड फॉर दिस. ऑलरेडी वो पूरा हो चुका है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड. थैंक यू. Thank you so much. Yes. Thank you for all the money that I have been given throughout my life. Thank you for all the money that I have been given throughout my life. And the gift of health is keeping me alive. ये हेल्थ का जो गिफ्ट है वो देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इतनी अच्छी मेरी हेल्थ है, हमेशा ये मेरा जो शरीर है वो हमेशा इतना हुस्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. All right. Okay, so now let's read our book. अच्छा, आप सब लोग आज यहाँ पे हो तो मैं सबसे पूछना चाहूंगी कि आपको ये प्रैक्टिस इसमें कुछ भी मतलब आपको कोई सजेशन है अगर आपका, तो आई एम रियली ओपन टू दिस सजेशन. कि कोई सजेशन आपका है कि हमें प्रैक्टिस ऐसे नहीं, अगर ऐसे करते तो ज्यादा अच्छा रहता, या आपको कहीं पे लगता है कि मैं जो चीजें बोल रही हूँ आप उसके साथ रिलेट नहीं कर पाते हो, या आप उसके अंदर इतना फीलिंग्स नहीं ला पाते हो, कुछ भी है प्लीज मुझे बताइए. देखो हमारा इसीलिए ये छोटा सा ग्रुप है कि हम इजीली एकदम कम्युनिकेट कर पाए अपने साथ, एक दूसरे के साथ. ओके, जितना आप कम्युनिकेट करोगे इतना ही आपको भी फायदा होगा कि आप ओपन अप हो रहे हो, आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हो. तो प्लीज एक्सप्रेस योरसेल्फ. जो भी कुछ है मुझे बताइए कि हाँ नहीं ये प्रैक्टिस हम ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं. देखो मैं भी कोई कोच नहीं हूँ, हम लोग सब सीकर्स है. ओके, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने साथ में आते हैं, दैट्स इट. तो आपको कहीं पे लगता है कि हाँ नहीं दी आप ऐसे नहीं ऐसे करवाओ, या फिर ऐसे क्या हम ऐसे कर सकते हैं, आपका कोई भी सजेशन है, आई एम फुल्ली ओपन टू दैट सजेशन. बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग रोज प्रैक्टिस में आओ, ये प्रैक्टिस करो. बस मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रैक्टिस करोगे आप, आपकी लाइफ बहुत यानी 360 डिग्री टर्न ले लेगी अगर आप कंटिन्यूअसली ये प्रैक्टिस करते हो. ओके, सो लेट्स रीड. बिफोर यू एंटर द बॉडी फॉरगिव. तो अभी ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है यहाँ पे, फॉरगिवनेस का टॉपिक. मुझे लगता है कि पूरी लाइफ भी अगर हम ये फॉरगिवनेस वाला जो होपोनोपोनो हम करते हैं ना, पूरी लाइफ भी करेंगे तो वो कम है, क्योंकि कितनी सारी चीजें हमने अंदर पाल के रखी हुई है. मे बी अगले जन्म से भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट ऑल दैट, बट मुझे इतना पता है कि हमें बहुत चीजों के लिए फॉरगिवनेस की जरूरत है. इसीलिए हम अपना जो भी ये लाइफ में अभी कुछ
हमारी लाइफ में अगर कुछ नेगेटिविटी भी है तो उसी के कारण होती है कि कहीं ना कहीं पे हमने शुक्राने कम किए हैं, कहीं ना कहीं पे हमने किसी को फॉरगिव नहीं किया है, अपने आप को फॉरगिव नहीं किया है। द मोर आई फॉरगिव माई सेल्फ, द मोर इट इज इजी टू फॉरगिव अदर्स। ये हमेशा मैं बोलती हूँ ये डायलॉग, जो लुइस है का है, हमने मिरर वर्क में ये पढ़ा था। बट आप अपने आप को ही फॉरगिव करना आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम 4 दिन खाली ये होपोनोपोनो करते हो गया, नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। ओके, तो जैसे टोनी रॉबिन्स ने भी कल रिलेशनशिप के ऊपर पूरा था उनका, तो रिलेशनशिप के ऊपर एक बात उन्होंने बीच में यही बोली कि होपोनोपोनो की जो ये प्रैक्टिस है फॉरगिवनेस के लिए। If you don't know Tony Robbins, I would give a little bit of hint about him. ये जो लाइव प्रैक्टिसेस होती है उसमें भी ऑलमोस्ट 50-90,000 पीपल होते हैं ये लाइव प्रैक्टिसेस के अंदर। पूरे वर्ल्ड में ये इतने फेमस है। अगर आप कभी लिखोगे ना टोनी रॉबिन्स, ही इज द नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और कोच इन द होल वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि खाली यहाँ पे यूएस में, he lives in US, but he's the best motivational coach. और I was so amazed कि हम ये जो चीजें अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे उसने वही चीजों के बारे में बातें की हैं। I was so happy and I was so feeling blessed कि हम लोग ऑलरेडी ये पाथ पे है, you know. तो yes, we have to like, हाँ उनकी कोई चीजें अलग भी है जो अलग चीजों पे भी वो बात करते हैं, बट मोस्टली जो चीजें होती है वो स्पिरिचुअली होती है। उसने बोला कि बिजनेस इज अ कंप्लीटली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। बिजनेस करना, उसको आगे बढ़ाना, कैसे आप अपने आप से गिव करना, वैल्यूज देना पहले, फिर उसके बारे में सोचना कि वो वापस में, यानी आप अगर अपनी वैल्यू देते हैं तो फिर जरूर 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 आपको उसका रिवॉर्ड मिलता ही है एट द एंड, बट फर्स्ट यू हैव टू गिव। तो एनीवेज, let's read from here. I felt very uncomfortable. कोई वॉलंटियर है आज रीड करने के लिए, या मैं ही असाइन कर दूं फिर? Should I assign the volunteer, I mean person to read, और आप रीड करना चाहते हो? Nobody is there? How come? किसी को रीड नहीं करना है? चलो नेहा जी यहाँ पे है आज। नेहा जी आप रीड करोगे? Yes, ma'am. ओके, परफेक्ट, थैंक यू नेहा जी। ओके, लेट्स रीड। I felt very uncomfortable when I tried to put my attention on the inner body. There was a feeling of agitation and some nausea. थोड़ा अपना फोन अपने माइक्रोफोन के पास ले लीजिए, थोड़ी सी आवाज वो हो रही है। हाँ, So I haven't been able to experience what you are talking about. What you felt was a lingering emotion that you were probably unaware of until you started putting some attention into the body. Unless you first give it some attention, the emotion will prevent you from gaining access to the inner body, which lies at a deeper level underneath it. Attention does not mean that you start thinking about it. It means to just observe the emotion, to feel it fully, and so to acknowledge and accept it as it is. Some emotions are easily identified: anger, fear, grief, and so on. Others may be much harder to label. They may just be vague feeling of unease, heaviness, or constriction, halfway between an emotion and a physical sensation in any case. हाँ, what matters is, यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लो, फिर मैं समझाती हूँ। What matters is not whether you can attach a mental label to it, but whether you can bring the feeling of it into awareness is as much as possible. Attention is the key of transformation,
And full attention also implies acceptance. Attention is like a beam of light, the focused power of your consciousness that transmutes everything into itself. हाँ, the focused power of your consciousness that transmutes everything into self. तो यहाँ पे आप में से किन किन लोगों को ऐसे लगता है कि कभी कभी बिना कारण के ही आप लो फील करते हो? एनीबडी वांट्स टू शेयर? लेट्स कीप इट इंटरैक्टिव. हम लोग सब साथ में समझते हैं कि यहाँ पे ये बोलना क्या चाह रहे हैं. एनीबडी हैज एनी? कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिना कोई रीजन के आप अंदर से एजिटेटेड फील करते हो, या पता नहीं होता कि उसके अंडरनीथ क्या है, बट ऐसे ही आपको लो फील होता है. एनीबडी? यानी अभी आप ग्रेटिट्यूड वगैरह की प्रैक्टिस करते हो तो कम होगा ऐसी चीजें, बट होती है, राइट? कि कभी कभी आपको बिना रीजन के आप ऐसे ही थोड़ा सा लो फील करने लगते हो. आपको पता नहीं होता है कि कौन से मेरे इमोशंस है जो ये फील करवाते हैं. तो यहाँ पे इनको किसी, हाँ बतूल बोलो. हाँ अलीफा, ऐसा होता है कि विदाउट एनी रीजन वी आर जस्ट सैड, काम करते हैं लेकिन उसमें मूड नहीं होता. हाँ, and our attention is somewhere else, but we don't know what it is. We look tired, we will energy down भी low होती है, कुछ करते हैं लेकिन energy low होती है. हाँ, नो ऊपर ऊपर का होता है जो भी करते हैं वो. एग्जैक्टली. फुल कंसंट्रेशन या फोकस ऑफ माइंड या प्रेजेंस ऑफ माइंड या हैप्पीनेस, स्माइल, sometimes it is like that. Right, exactly. Even I also felt the same way sometimes. तो ये क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं पे अंडरनीथ हमारी ऐसे इमोशंस है जो अनईज फील करवाते हैं, हमें हैवीनेस फील करवाते हैं या कंस्ट्रिक्शन फील करवाते हैं, कि आपकी ब्रीदिंग शेलो हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन. अगर आप खाली तभी आप फील कर पाओगे जब आप अटेंशन वहां पे लाओगे. अदरवाइज को हमें खुद को ही पता नहीं होता कि ओ मेरी ब्रीदिंग शैलो है अभी. ये हम जब तभी आइडेंटिफाई कर पाते हैं जब हम अटेंटिव होते हैं, अवेयरनेस में होते हैं. तो यहाँ पे किसी ने जब ये पूछा कि जब वो अंदर गए, इनर बॉडी के अंदर गए, उनको एजिटेशन फील हुआ, कहीं ना कहीं पे नोजिया, एजिटेशन, ऐसा कुछ फील हुआ, तो उन्होंने वो फील नहीं किया जो उनको फील करना चाहिए था. अपने हम जब इनर बॉडी में जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ वहां पे लाइफ फील करते हैं, राइट? लाइफ को एक अंदर वहां पे एक एनर्जी है जो हम फील करते हैं, बट उन्होंने बोला कि वो उन्होंने कुछ ऐसा फील नहीं किया. तो इकार्ट ने उनको यही जवाब दिया, क्योंकि वो क्यों नहीं फील कर पाए, क्योंकि जैसे ही वो अटेंशन लेके गए तो वहां पे माइंड जो उनको फील करवाना चाहता था, यानी माइंड के कोई इमोशंस थे जो वहां पे ऑलरेडी लिंगरिंग थे, यानी वहां पे वो ऑलरेडी थे वो इमोशंस. इसलिए वो इमोशंस को वो देख पाया, ना कि वो अपने मतलब जो भी इनर बॉडी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाया. क्योंकि बहुत सारे इमोशन हमारे अंदर होते हैं जो अंडरनीथ होते हैं, डीप लेवल के अंदर, हमें खुद को भी पता नहीं होता है. बट अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, खाली अटेंशन भी दे देते हो उसको बिना कोई वो दिए, लेबल दिए बिना, तो उसी से आप उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हो ये सारे इमोशंस को. Isn't it amazing कि हमें खाली इतना ही करना है कि अवेयरनेस में आना है, वो धीरे 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 ये सारी चीजें ट्रांसम्यूट, यानी कि वो जो एक्सप्रेस करनी, मतलब जो रिलीज होनी चाहिए, वो हमारे में से धीरे 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 अपने आप चली जाएगी. खाली हमें अपना कॉन्शियस अटेंशन उस पे देना होता है. दैट्स इट. Okay, so focused power of your consciousness that transmutes everything into itself. Awareness में जितना आप लाओगे, ये सारी चीजों को ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से स्टार्ट होता है, यानी ऐसे सारी चीजों का. क्योंकि जैसे ही आप अटेंशन में आते हो, आप कहीं ना कहीं पे उसको एक्सेप्ट कर रहे हो. जैसे अभी मैंने कुछ चीजें अपने अंदर से पकड़ी जो मैंने कभी नहीं पकड़ी थी. तो वो चीज जैसे ही मतलब मैं क्यों यहाँ पे बोल रही हूँ कि जैसे ही आप अवेयरनेस में होते हो और आपने देखा कि अच्छा मेरे अंदर की ये कोई पैटर्न है, आप जैसे ही आइडेंटिफाई करते हो, यानी आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये मेरे अंदर ही कुछ पैटर्न है,
फिर आप ना तो बाहर कुछ ढूंढ रहे हो या बाहर ब्लेम कर रहे हो, ना बाहर कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हो या बाहर की चीजों को आप अपने ऊपर थोप रहे हो, कुछ भी नहीं। जैसे ही आपने अपनी पैटर्न को पकड़ा, तुरंत ही आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ, यही पैटर्न है जिसकी वजह से ये चीज मेरे साथ हो रही है। और जैसे ही हम अवेयरनेस में आते हैं, सारी चीजें अपने आप ट्रांसम्यूट होने लगती है। यानी एग्जाम्पल जैसे मे बी एग्जाम्पल के लाइक, अच्छा चलो मैं अपनी कोई ईगो की बात करूं, तो मेरे ईगो के अंदर होगा कि अभी जैसे मैंने बीच में पकड़ा कोई चीज, कि कहीं ना कहीं पे मुझे लगा कि ओ मेरे मेरे होने से या मेरे करने से ये चीजें हो रही है। कहीं ना कहीं पे मैंने ईगो को पकड़ा, मेरी पैटर्न को, कि कहीं ना कहीं पे मेरी थिंकिंग में ऐसा था कि बिकॉज आई एम डूइंग, इसलिए ये चीज इस तरह से हो रही है, यानी कुछ अच्छा हो रहा था उस टाइम पे। तो ये चीज फिर मैंने अपने ईगो को पकड़ा कि नहीं, यू नो, अगर मैं किसी को, अगर मान लो मैं किसी को मदद करती हूँ या किसी को हेल्प करती हूँ या जो भी करती हूँ, और मुझे लगता है कि वो मेरी वजह से हो रहा है, तो दैट इज माई माई ईगोइस्टिक माइंड जो मुझे ये चीजों को बताता है। फिर मैंने अवेयरनेस में उसको पकड़ा कि नहीं, जो अगर मैं कुछ भी करती हूँ ना, वो मैं अपने लिए ही करती हूँ, अपने लिए करती हूँ, किसी के लिए मैं नहीं करती हूँ। तो ये चीजें मैंने अभी पकड़ी थी बहुत ही रिसेंटली अपने बारे में, कि ईगो को हमें धीरे 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 हमारे ईगो को पकड़ना है, पैटर्न्स को देखना है कि ईगोइस्टिक पैटर्न्स कौन सी चल रही है। तो बहुत सारे ऐसे ईगो पैटर्न्स को मैंने अभी रिसेंटली पकड़ा है। तो लेट्स रीड फर्दर। इज इट क्लियर हकीम? यस यस। ओके। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने हाँ। अभी मेरे एक पैटर्न को पकड़ा। जैसे न्यूज़पेपर रीड करते के टाइम में क्या करता, पूरा रीड कर लेता था, बराबर। हेलो, आवाज आ हाँ रहा है? हाँ, थोड़ी कम आ तो रही है आवाज, तो थोड़ा सा माइक्रोफोन को अगर पास ले न्यूज सकते हो। न्यूज़पेपर जब मैं रीड करता था ना पहले, तो अभी दो हम्म। तीन दिन से मैंने ऐसा सोचा। तो मान लो पेपर मेरे यहाँ 3-4 पेपर आते हैं न्यूज़पेपर, तो मैं रीड करता हूँ। पर वो रीड करने के बाद मान लो आप 2-5 मिनट के बाद भी मुझे पूछो कि उसका हेडलाइंस क्या है, क्या था, तुमने क्या रीड किया, तो मैं वो बता नहीं सकता था, क्योंकि मैं इतना उसको कॉन्सेंट्रेशन उसमें भी मेरा नहीं था। एक बार चलो पढ़ना पढ़ लिया, पर उसको देखने का या उसको ध्यान करने का वो सब मुझे पहले नहीं था। पर मैंने अभी देखा कि उस टाइम में क्या करता था कि एक तरफ मैं कस्टमर से बात करता हूँ, एक तरफ मेरे जो यहाँ पे मेरे शॉप पे जो आदमी है उन लोगों से बात करता हूँ, दूसरा कुछ चल रहा है, एंड 3-4 चीज एक साथ में करता था। तो उसके लिए जो मैं न्यूज़पेपर में जो जैसे ये बोलते हैं पावर ऑफ नाउ, जिसमें जो है उसी मोमेंट में रहो और उसको एंजॉय करो। तो अब न्यूज़पेपर रीड करने का मीनिंग क्या रहा, मैंने उसको पढ़ा, खाली पढ़ा, और उसमें कोई मेरे को ध्यान ही नहीं कि क्या है न्यूज आज का। तो मैंने अभी 2-3 दिन से वो मैं देख रहा हूँ तो मैंने वो आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने किया। अपने बारे में पैटर्न नोट की, राइट? कि हाँ हाँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता तो हूँ, बट मेरा माइंड तो कहीं इधर उधर भटकता है। हाँ हाँ वेरी नाइस, तो यानी यू रिकॉग्नाइज द हाँ पैटर्न। जी जी जी। हाउ नाइस। ओके, लेट्स रीड। सो इन अ फुल्ली फंक्शनल ऑर्गेनिज्म, यहाँ से रीड करो नेहा जी। So place your attention on feeling the नहीं, emotion. ये वाला पैराग्राफ है ना, इन अ फुल्ली फंक्शनल ऑर्गेनिज्म। Okay, okay. In a fully functional organism, an emotion has a very short lifespan. It is like a momentary ripple or wave on the surface of your being. When you are not in your body, however, an emotion can survive inside you for days or weeks, or join with other emotion of a similar frequency that have merged and become the pain body. A parasite that can live inside you for years, feed on your energy, lead to physical illness, and make your life miserable. हाँ, तो ये देखा ना कि इमोशन हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन. इट इज लाइक अ मोमेंटरी रिपल और वेव ऑन अ सरफेस ऑफ योर बीइंग. और जब आप अपनी बॉडी में नहीं होते हो, however, an emotion can survive inside you for days, weeks or even for years. वही इमोशन आपके अंदर एक पैरासाइट बन के आपके अंदर रह रहा है
ओके, समझ लीजिए पैरासाइट कैसे होता है, जो ट्री को खत्म कर देता है। अगर ट्री के ऊपर कोई ऐसे प्लांट आ जाते हैं जो ट्री का पूरा जो भी रिसोर्सेस होते हैं वो खाता रहता है। उसी तरह से हमारे जो पेन बॉडी के जो इमोशंस है, यानी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा कि कैसे हम अपने आप से ही पेन बॉडी को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसी तरह से ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस है ना, हमारे अंदर एक पैरासाइट की तरह है। वो नेगेटिव इमोशंस हमें ही खाते रहते हैं। एंड उसी बरसों के बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी फिजिकल इलनेस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं पे हमारी लाइफ को वो मिजरेबल बना देते हैं। तो लेट्स रीड फर्दर। So place your attention on feeling the emotion and check whether your mind is holding on to a grievance pattern such as blame, self-pity, or resentment that is feeding the emotion. If that is the case, it means that you haven't forgiven. Non-forgiveness is often toward another person or yourself, but it may just as well be toward any situation or condition, past, present, or future, that your mind refuses to accept. Yes, there can be non-forgiveness, even with regard to the future. This is the mind's refusal to accept uncertainty, to accept that the future is ultimately beyond its control. Forgiveness is to relinquish your grievance and so to let go of grief. It happens naturally once you realize that your grievance serves no purpose except to strengthen a false sense of self. Forgiveness is to offer no resistance to life, to allow life to live through you. The alternatives are pain and suffering, a greatly restricted flow of life energy, and in many cases, physical disease. हाँ, तो जब आप हम रिसेंटमेंट या कुछ ऐसा रखते हैं, आपको एक्चुअली पता भी नहीं होगा, जहां कभी कहीं पे भी आप इरिटेट हो रहे हो ना, समझ लेना वहां पे, और बहुत टाइम से अगर आप वहां पे इरिटेट हो रहे हो कोई बंदे से या कोई चीजों से, समझ लेना अंडरनीथ वहां पे कुछ ना कुछ रिसेंटमेंट है, कि वही बंदे की छोटी सी बात भी आपको ट्रिगर कर देती है। मान लो वो दूसरों को इतना नहीं ट्रिगर करती, पर आपको अगर वो ट्रिगर करती है, समझ लेना वहां पे कोई ना कोई रिसेंटमेंट आपके अंदर है। कभी कभी ये माइंड, जो इगोइस्टिक माइंड होता है, वो हमें रिकॉग्नाइज भी नहीं करने देगा। उसके लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रेजेंस चाहिए। यानी इतनी सारी चीजें हम सीख रहे हैं अभी, ये चीजें आप जब प्रैक्टिकली आप महसूस करोगे, आपको पता चलेगा। जो चीज मैंने अभी लास्ट मंथ के अंदर कोई चीजें मैंने खुद प्रैक्टिकली महसूस की, कि कहाँ पे मेरा ईगो माइंड मुझे वो रिसेंटमेंट के अंदर लेके जाता था। और कहीं ना कहीं पे अगर मान लो कि किसी चीज के साथ आप दुखी हो रहे हो ना, कि वो चीज से आप हर्ट हो रहे हो, मान लो किसी ने आपको बोला, यानी कभी कभी हम बोलते ना ऐसे ही कि अरे डोंट टेक इट पर्सनली, बट आप हो, अगर आप ऐसे बंदे हो, आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो इतनी सेंसिटिव हूं कि मैं पर्सनली चीजों को ले लेती हूँ। पर्सनली चीजों को लेना ही, दैट इज कहीं ना कहीं पे वहां पे रिसेंटमेंट है। आपको पता नहीं चलेगा रिसेंटमेंट कहाँ पे है, आपका बहुत ज्यादा प्रेजेंस वहां पे चाहिए। आपको लगेगा कि नहीं मेरी लाइफ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर कहीं कहीं पे अगर आप थोड़ा सा भी इरिटेट हो रहे हो, या थोड़ा सा भी आपके अंदर से कोई गुस्सा आ रहा है, समझ लेना वहां पे कोई ना कोई इमोशन है, अंदर छुपा दबा इमोशन है, जो आप पहचान नहीं पा रहे हो अभी। एनीबडी फील लाइक दैट कि हाँ ऐसा होता है? क्योंकि वही रिसेंटमेंट, वही ग्रीवेंस, कभी कभी ग्रीवेंस भी बोलते हैं कि आप बिना कोई बात के आप सैड हो जाते हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं पे ग्रीवेंसेस है। किसी लोगों को लेके आपने कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत अपने अंदर हर्ट क्रिएट किया है,
हर्ट मतलब आप दुखी हुए पड़े थे उस टाइम पे कि मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ये इंसान ने ऐसा किया, या कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी खुद की बात करूँ तो हाँ, मेरे अंदर भी ये कहीं ना कहीं पे ये हर्ट था मेरे अंदर, जो मैंने अभी अवेयरनेस के अंदर उसको पहचाना और उसकी पैटर्न को मैंने चेंज किया। यानी मुझे कुछ खास करना नहीं पड़ा, खाली वो पहचानना, वो एक्सेप्ट करना और फिर उसके लिए फॉरगिवनेस करना, दैट इज मोर देन इनफ। बट वो पहचानना ही सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपनी ही चीजों को, रिसेंटमेंट को आप पहचानो। यस, आई वॉज रिसेंटफुल अबाउट दिस वन पर्सन, जो मुझे खुद को ही नहीं पता था कि हाउ मच आई वॉज रिसेंटफुल। यानी जो पता है ना, मिरर वर्क में जो बोलते हैं लुइस है, जब हम फॉरगिवनेस वाला चैप्टर करते हैं तो वो बोलते हैं कि फॉरगिवनेस इज नॉट, ऐसा नहीं है कि वो नॉट अ थिंग टू डू इट लाइक इन अ एक बार में होगा और कर लेंगे और हो जाएगा, नॉट अ वन टाइम थिंग। एक जैसे प्याज नहीं होता है, प्याज जो होता है उसके लेयर बाय लेयर उसको निकालते हैं, फिर उसको वापस रख देते हैं, वापस 1-2 दिन में वापस वो लेयर्स को निकालते हैं। उसी तरह से फॉरगिवनेस मुझे लगता है पूरी लाइफ चलेगा हमारा। इतना कुछ अंदर भरा हुआ है, आपको पता भी नहीं होगा। अभी जब आप अवेयरनेस में होंगे तो ही आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर ये ग्रीफ है, ये सैडनेस है, मेरे अंदर ये रिसेंटमेंट है, मेरे अंदर ये इरिटेशन भरा हुआ है, मेरे अंदर ये एंगर किसी के बारे में भरा हुआ है, या मे भी कभी कभी आप अपने आप से ही एंग्री होंगे, अपने आप से ही रिसेंटफुल हो, ये भी आपको नहीं पता होगा। हम अपने खुद से कितना रिसेंटफुल होते हैं कभी कभी, हमें खुद को ही नहीं पता होता। बट अवेयरनेस के अंदर सारी चीजें आप ट्रांसम्यूट कर पाओगे। या सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम टू, हाँ, सो समटाइम्स एग्जैक्टली अरवा ने भी जैसे लिखा, तो बहुत ज्यादा आपको अवेयरनेस में रहना है तो ही आप अपनी ये सारी पैटर्न्स को एक्सेप्ट कर, मतलब एक्सेप्ट तो बाद में आएगा, पहले तो रिकॉग्नाइज कर पाओगे। रिकॉग्नाइज कर लिया तो फिर आपको एक्सेप्टेंस इजी हो जाएगा, और आपको पता नहीं होगा यही चीजें कैसे फिजिकल डिजीज बन के आती है हमारे अंदर, हमारी लाइफ के अंदर। ये रिसेंटमेंट जो होता है हमेशा, नॉट हमेशा बट मोस्ट ऑफ द टाइम, वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। रिसेंटमेंट जो भी हमने स्पेशली किसी एक या दो बंदे के खिलाफ, या में जस्ट मेजरली लाइफ के, कई लोग लाइफ को भी रिसेंट करते हैं कि मेरी तो लाइफ ही ऐसी है जो भी है। तो फॉरगिवनेस इज द की, बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि होपोनोपोनो पूरा दिन भी करते रहे ना, वो भी कम है, बहुत कम है हमारे लिए। बट एटलीस्ट वन टाइम आप प्रैक्टिस जरूर करो। जैसे मेरे पास हमारे इसमें तस्बीह बोलते हैं उसको, तो मेरे पास निकली, तो तस्बीह मैंने अपने बेड के साइड में रख ली है कि रोज उसको मैं, आप में जो माला बोलते हैं वो, तो हमारे में जैसे 100 की होती है, तो मैं 108 टाइम्स ये जो प्रेयर है, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, मैं और कोई प्रेयर नहीं करती, मैं और कोई तस्बीह नहीं करती, बट मैं ये वाली करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज मैं समझ सकती हूँ, जो चीज में मैं फोकस कर सकती हूँ, वो अगर मैं करूँ तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। इसलिए मैं वो सब चीजें करती हूँ जो मुझे समझ में आता है। तो मैं ये रोज ये मेरे सामने रखती हूँ, और मैं रोज ये 4 सेंटेंसेस कंटिन्यूअसली 108 टाइम्स करती हूँ, और मुझे ये पूरी नेगेटिविटी को निकालने में बहुत ज्यादा उसने मदद की है। और एक और प्रैक्टिस मैंने यस हकीम, इट्स वेरी गुड आइडिया ऑन, ओके लेट्स रीड फर्दर। मैं एक और प्रैक्टिस आपको जैसे कल हम होपोनोपोनो किसी चीज पे नहीं करेंगे, बट आपको मैं ऐसे ही एक करवाऊंगी, एक्सपीरियंस करवाऊंगी कि किस तरह से हम अपने अंदर की नेगेटिविटी कैसे निकाल सकते हैं। होपोनोपोनो की प्रैक्टिस है, बट थोड़ी डिफरेंट प्रैक्टिस है, मैं करवाऊंगी आपको कल। तो इवन इफ आई फॉरगेट, प्लीज रिमाइंड मी। तो लेट्स रीड द मोमेंट यू ट्रूली फॉरगिव। The moment you truly forgive, you have reclaimed your power from the mind. Non-forgiveness is the very nature of the mind.
Just as the mind made false self, the ego cannot survive with our strife and Without conflict. strife The and conflict. out strife and conflict. The mind cannot forgive. Only you can. You become present. You enter your body. You feel the vibrant peace and stillness that emanates from being. That is why Jesus said, before you enter the temple, forgive. हाँ, कहीं पे भी forgiveness is the most important thing. तो ईगो आपको कभी भी forgive नहीं करने देगा. Non forgiveness is the very nature of the mind. कितना मजेदार ये सेंटेंस है. यानी जब कभी भी हम ईगो में अपने ईगो से माइंड से सोच रहे हैं, ईगो के स्टिक माइंड से सोचते हैं, वो कभी नहीं फॉरगिव करने देगा. मान लो आपके किसी फ्रेंड ने आपके साथ कुछ ऐसा किया और आपको बार बार वो चीज भटका रही, मतलब वो कर रही है, क्या बोले, डिस्टर्ब कर रही है कि यार मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया. खाली एग्जाम्पल के तौर पे लेती हूँ यहाँ पे कि मान लो आपके फ्रेंड ने आपको कुछ ऐसी बातें बोल दिया, ऐसा कुछ बिहेव किया जो आपको सही नहीं लगा आपके लिए, और उसको आप बार बार अपने अंदर, आपको वो डिस्टर्ब कर रही है बात कि मेरी फ्रेंड जो इतने अच्छे बरसों से मेरे साथ इतना अच्छा थी या है, एकदम से अचानक से उसने मेरे साथ क्यों ऐसा बिहेव किया. तो ये कौन सा माइंड है? ये नॉन फॉरगिवनेस वाला माइंड है. मतलब सॉरी, कौन सा माइंड है, नहीं, ये कहाँ से आता है? माइंड में से आता है, क्योंकि नॉन फॉरगिवनेस माइंड का ही नेचर है. तो कभी कभी मैं अपने पार्टिसिपेंट से बात करती हूँ, तो एक बार अभी बीच में एक पार्टिसिपेंट के साथ बात हुई, हमारे यहाँ से ही है, यहीं के पार्टिसिपेंट है. तो शी वाज सफरिंग फ्रॉम अबाउट 6 months. एक चीज की वजह से वो सफर कर रही थी, अभी मैं नाम तो नहीं लूंगी उनका यहाँ पे, बट उनका ईगोइस्टिक माइंड वो चीज के लिए फॉरगिव करने के लिए रेडी ही नहीं था. फिर जब मैंने उनको बहुत हार्शली, मैंने उनको इस टाइम पे बताया होगा, हार्शली इन द सेंस के लाइक कभी कभी माइंड को जगाने के लिए हमें कुछ ऐसे ऐसे बोलना पड़ता है, यू नो, लाइक लिटिल बिट इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर. स्ट्रांगली मैंने उसको बोला कि तू अपने लाइफ के साथ क्या कर रही, तुझे देखना होगा. यू नो, शी वॉज नॉट एबल टू फॉरगिव सम पीपल इन हर हाउस जो उसके खुद के ही उसमें से है. जस्ट अ सेकंड. तो 6 महीने से उसकी तबीयत इतनी खराब रहती थी, बिकॉज वो उसका माइंड वो बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं था कि वो खुद वो अंगारा लेके बैठी हुई है फेंकने के लिए, बट वो अपने आप को ही जला रही है वो अंगारे से. उसको जब मैंने रियलाइज करवाया तब उसको रियलाइज हुआ, एंड आई सेड कि आज ही वो पर्सन के बारे में 10 ग्रेटिट्यूड लिखो, और रोज लिखना है जब तक आपका माइंड पूरी तरह से प्योर नहीं हो जाता. And that was the turning point for her. तो यानी आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लोगे जब आप नॉन फॉरगिवनेस में चले जाते हो. The moment you truly forgive, you have reclaimed your power from the mind. आप अपना पावर अपने पास ले लोगे जैसे ही आप फॉरगिव करोगे किसी को. जैसे ही आपने, यानी वो मान लो कोई फ्रेंड है जिसने आपको कुछ बोल दिया, जैसे ही आपने उसको दिल से माफ कर दिया, आपका पावर आपने खुद के ऊपर ले लिया. जब तक आप उसको ब्लेम कर रहे हो तब तक आपका पावर आपने किसी और के हाथ में दे दिया है. आपका पावर आपके पास नहीं है, आप विक्टिम मोड में हो. ये कभी कभी तो लोग ये भी एक्सेप्ट नहीं करते कि वो विक्टिम मोड में जी रहे हैं. उनको ये भी नहीं पता होता कि वो विक्टिम मोड में है अभी. अगर उनको अपना पावर रिक्लेम करना है तो उनको फॉरगिव करना पड़ेगा, लेट इट गो करना पड़ेगा, बहुत जरूरी होता है. जितना आप फॉरगिव करते जाओगे इतना ही आपकी लाइफ में से नेगेटिविटी जो भी अंदर डीपर लेवल में है वो निकलती जाएगी, एंड आपको खुद ही फील होगा कि पहले के कंपैरिजन में अब मैं ज्यादा हैप्पी रहती हूँ. चलो मान लो पहले की लाइफ जैसे थी, अगर मैं अपनी लाइफ बात करूं तो जैसे मंडेन लाइफ थी, ओके चल रही है,
बीच बीच में खुशी के थोड़े आ जाते थे मोमेंट्स, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा चलता था, ओके चल रही है लाइफ, यू नो, तो उसमें कोई खुशी या ऐसा नहीं है, मतलब चल रही है मंडेन। बट अभी मैं देखती हूँ कि जैसे जैसे नेगेटिविटी को मैं निकालती जाती हूँ, मेरे ईगो को मैं धीरे धीरे ट्रांसम्यूट कर रही हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरी हैप्पीनेस का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत जल्दी अगर कुछ चीजें होती भी है जो मुझे अगर लो में या नेगेटिव में लेके जाती है, वो खाली बहुत कम टाइम के लिए वहां पे टिक पाती है, क्योंकि मैं तुरंत ही फिर अपने आप को वापस हाई फ्रिक्वेंसी जोन में लेके आती हूँ। यानी कभी कभी एफर्ट्स भी लग जाते हैं, बट एटलीस्ट मुझे अपने आप से ही अवेयरनेस आ जाती है कि नहीं, ये नहीं, ऐसे करना है। हाँ हकीम बोलो। फॉरगिवनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे यही बताना था, आपने वो पॉइंट जो बताया फ्रेंड्स वाला, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ ऐसा हुआ ना, तो आपने जो ईएफटी करवाया था ना फॉरगिवनेस वाला, तो पहले मेरा माइंड एकदम, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, उसने मुझे बोला तो मैंने घर पे जाके 2-3 दिन तक वो ईएफटी 2 बार किया फॉरगिवनेस वाला, तो फिर मेरा माइंड एकदम रिलैक्स हो गया और मैं वो चीजें भूल गया। फिर वापस 8-10 दिन हुए तो वापस मुझे वो याद आया, तो मैंने मिरर में जाके बोला, चलने उसने मेरे लिए ये कुछ भी किया हो, पर इसके लिए मैं उसको यूं माफ नहीं करूंगा, इतनी छोटी चीज के लिए, ऐसे मैंने सोचा और फिर बोला मैंने, और फिर मैंने उसके बाद होपोनोपो किया उसका नाम लेके। तो मान लो वो चीज लगभग 20 दिन हुए थे, तो उसका फोन आया मेरे पास सामने से। तो यानी ये मुझे मैजिक ही लगा एक तरह का, कि भाई मैंने जैसे होपोनोपो किया 2 बार लगभग 2 दिन, तो तीसरे दिन उसका फोन आ गया। तो वो मुझे शेयर करना। मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है कि जिसके बारे में मैं होपोनोपोनो करके उनको प्यार भेजती हूँ, भले फिर मैं सामने से कुछ नहीं करती, उनका ही सामने से फोन आ जाता है, या उनसे जो बात होती है बहुत ही जैसे हार्ट टू हार्ट बात हो जाती है। तो यस, दीज थिंग्स वर्क्स मिरेकुलसली यानी ये होपोनोपो बहुत इफेक्टिव लगा मुझे मिरर वर्क बहुत के साथ। इफेक्टिव। यस। हाँ, तो अभी मेरी एक और फ्रेंड है, उसके साथ मेरी बात हुई थी, तो वैसे वो ये सेशन में नहीं आती है, बट ऐसे ही हम लोग ऐसे ही अपने साथ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बट वो भी ये सब चीजों में प्रैक्टिस करती है। तो जैसे ग्रेटिट्यूड, पावर बुक, ये सब चीजें वो प्रैक्टिस करती है। तो उसका बीच में ऐसे ही फोन आया था कि लाइक कुछ चीज थी जो उसको बॉदर कर रही थी, यानी उसने वही जो मैंने बोला ना कि हम कुछ कोई चीज पर्सनली लेते हैं, फिर मैंने उसको बताया कि ये पर्सनली लेने वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं में आपके अंदर वो एक गिल्ट फैक्टर है, या कहीं ना कहीं पे मैंने उसको बताया कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जिसको आपको फॉरगिव करना है, अपने आप को ही। एक्चुअली उसके केस में तो ऐसा ही था कि वो अपने आप को ही कहीं ना कहीं पे फॉरगिव नहीं कर रही थी, कोई चीज ऐसी उसके माइंड के अंदर स्टक थी। फिर मैंने उसको ये होपोनोपोनो का, उसको प्रैक्टिस वैसे पता थी बट वो कर नहीं रही थी, फिर मैंने बोला कि प्लीज तू ये प्रैक्टिस कर। और कल मुझे 10 दिन के बाद उसका वापस मुझे फोन आया था कल, और उसने बोला कि जो चीज उसके लाइफ में इतने सालों से वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रही थी, गिल्टी में थी, और जिसकी वजह से कोई कुछ बोलता था तो उसको वो पर्सनली ले लेती थी, वो सारी चीजें उसने धीरे 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 करके होपोनोपोनो करके निकाल दी अपने अंदर से। Now she can talk about that thing, without any emotions. यानी हमें तब तक होपोनोपोनो करना है जब तक, मान लो अगर कोई पर्सन के बारे में है, जैसे हकीम ने अभी बताया कि उसका फ्रेंड है, अगर 10 दिन के बाद वापस आपको ऐसी फीलिंग आ रही है उसके बारे में कि यार क्यों इसने ऐसा किया, तो प्लीज कंटिन्यू योर फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, क्योंकि अभी भी आपने माफ नहीं किया है। यानी आपका मन एकदम प्योर हो जाना चाहिए कि फ्रेंड के बारे में आते ही उसके लिए खुशी निकल रही है, उसके लिए एक लव प्यार निकल रहा है कि वाह मेरे पास इतना अच्छा फ्रेंड है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। तब जब तक वो ना निकले ना, तब तक आपको वो फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको खुद को भी लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं पे अपने आप को माफ नहीं किया है, कहीं ना कहीं पे आप खुद गिल्ट महसूस करते रहते हो अंदर अंदर, कहीं ना कहीं पे आपको खुद को लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, तो अपने आप के लिए रोज ये अपने आप को ध्यान में रखते हुए अपने अपने दिल से, यानी फोकस आपका पूरा दिल पे होना चाहिए। एंड जैसे मैं अगर बोलूं तो मैं अलिफ्या, यानी अलिफ्या को ध्यान में रखते हुए मैं बार बार ये सेंटेंसेस बोलूंगी। ओके,
The more you forgive yourself, the more it is easier to forgive others. दूसरों को forgive करना इतना ही आसान हो जाएगा जब आपने अपने आप को पूरी तरह से माफ कर दिया. तो yes, forgiveness के ऊपर मैंने थोड़ा ज्यादा ही आज टाइम लिया क्योंकि बहुत जरूरी है हमें ये समझना. Let's pause and we will conclude the session over here. Okay, so let's pause. फॉरगिवनेस के बारे में पूरा समझते हैं जो भी यहाँ पे इनो एकार्ड ने जो बातें की हैं. All right, so thank you so much everyone for being here, for attending this session, and thank you so much, love, light and abundance to all of you. I hope कि आप forgiveness की ये जो हमारी process है उसको एकदम seriously लेके रोज करिए, देखिए आपको बहुत ज्यादा फर्क अपने अंदर महसूस होगा. यानी यहाँ पे हम इसीलिए रोज करते हैं, बट हम यहाँ पे इतना ज्यादा 108 टाइम्स नहीं कर पाते, बट मैं इसीलिए वो फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस लेती हूँ कि आप लोगों को पता हो कि कहाँ कहाँ पे आप ये फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कर सकते हो. मेरे में और आप में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा इतना ही फर्क है कि हाँ मैंने ये प्रैक्टिस की हुई है और मेरी लाइफ में मैंने ये प्रैक्टिस को उतार के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे हुए हैं. बाकी मैं भी आपकी तरह ही हूँ. आई एम नॉट अ कोच और एनीथिंग, वी जस्ट प्रैक्टिस टुगेदर हियर. So thank you so much for coming here. Love, light and abundance to all of you. I hope to continue this practice with you all. जब तक हम ये practice कर सकते हैं हम लोग साथ में करेंगे. ठीक है? तो Thank you, ma'am. Thank you Neha ji for reading so beautifully. Thank you so much. Thank you. Love, light and abundance to all of you.